So in today's lecture, we are going to study Laplace equation, harmonic function, harmonic conjugate, and like this. Okay. So let me first of all see, or let us see what is meant by Laplace equation. The equation del square phi, that is nothing but dou square phi by dou x square plus dou square phi by dou y square equal to 0. This equation is called Laplace equation in Cartesian form. In Cartesian form. That means what? अगर आपके पास एक function है phi, if you differentiate it 2 times, partially with respect to x and partially with respect to y 2 times, and then add them, if you get answer as equal to 0, then you can conclude that this phi satisfies the Laplace equation, or this the del square phi equal to 0 is called Laplace equation. Now any equation which satisfies any function which satisfies this equation is called as harmonic function. So next concept is harmonic function. Harmonic function. Any function of x and y, any function of x comma y which has continuous partial derivatives, which has continuous partial derivatives of first and second order and which satisfies Laplace equation, that is del square phi equal to dou square phi by dou x square plus dou square phi by dou y square equal to 0. If any function satisfies this equation, then we can conclude that the function is nothing but a harmonic function, is called a harmonic function. A harmonic function. ठीक है, कोई भी फंक्शन जिसके फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो कंटीन्यूअस होने चाहिए, एंड मोर ओवर इट मस्ट satisfy the Laplace equation. If it satisfies the Laplace equation, you can conclude that the function is nothing but a harmonic function. ठीक है, next concept, let us see some example based on this. और एग्जाम्पल इसके बाद में देखते हैं. अब अगला स्टडी करते हैं, दैट इज नथिंग बट नेक्स्ट मेथड, हाउ टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन हुज रियल और इमेजिनरी पार्ट इज गिवन. इसी में हम लोग स्टडी करेंगे मिलने थॉमसन मेथड टू फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन रजा analytic function whose real or imaginary part is given. Next topic, we have to find an analytic function whose real or imaginary part is given. Now we all know that complex function f of z is denoted by u plus iv, where u is real part and v is imaginary part.
right? So in this case, if u is given, we have to find v, and if v is given, we have to find u, or the whole function f of z. This is what the this topic is all about. Now in this there are four methods, but we will only study the method that is called as Milne-Thomson method, which is very easy compared to the other methods. Milne-Thomson method. Milne-Thomson मेथड. अब इस मेथड में क्या होता है कि आपको u दिया है, आपको v फाइंड आउट करना है, या v दिया है, आपको u फाइंड आउट करना है, या फिर टोटल फंक्शन f ऑफ z ही फाइंड आउट करना है. तो इस केस में ये मेथड बहुत यूजफुल होगी. सबसे पहले तो वी ऑल नो दैट लेट्स से z इज नथिंग बट x प्लस आई वाई. ये हमको पहले ही पता है, राइट? इफ आई टेक इट्स कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट, तो क्या होता है वो? इट इज नथिंग बट जस्ट चेंजिंग द sign of the imaginary part, so that is x minus iy, right? If I add this z plus z bar, so क्या हो जाएगा? z plus z bar is nothing but x और x हो जाएंगे 2x, और iy get cancelled. That is nothing but x is nothing but z plus z bar upon 2. बराबर है? नेक्स्ट, सिमिलरली अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इफ आई सब्ट्रैक्ट z minus z bar, then it is nothing but x get cancel and iy becomes 2iy. अब y को यहीं पे रखता हूँ, 2y को या 2i को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, then you can write z minus z bar divided by 2i is nothing but y. ठीक है? अब आपका फंक्शन था f of z. f of z is nothing but u of xy plus I into v of xy. बराबर? This I can write as u, x की वैल्यू है हमारे पास z plus z bar divided by 2, comma z minus z bar divided by 2i. ये हुआ u of xy plus I into v of xy, z plus z bar divided by 2, comma z minus z bar divided by 2i. बराबर है? नाउ इसमें क्या करना है हमको? अगर हमको f ऑफ z पूरा चाहिए, हम क्या करते हैं कि z बार जो है u ऑफ एक्स वाई, x की जगह पे z पुट करते हैं, y की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? This can be regarded as an identity in two independent variables. Two independent variables. Independent variables कौन से हैं? x और y, sorry, z and z bar, right? And therefore if we put, therefore we put z is equal to z bar, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2z upon z, तो z get cancelled, 2 get cancelled, so z बचेगा यहाँ पे z minus z bar, तो ये वैल्यू 0 बन जाएगी. यहाँ पे भी वही होगा. सो आपका f of z जो है that will become u of z comma 0 plus I into v of z comma 0. एंड thus इससे क्या हो रहा है? आपको f of z यानी आपका फंक्शन मिल जाएगा, राइट? लेकिन मिलने थॉमसन मेथड के लिए हम क्या करते हैं? देखो, इस थ्योरी से हमको ये पता चला कि जब आपका फंक्शन f of z है, एक मिनट, फ्रेम में दिख रहा है ना सबको? जब आपका फंक्शन f of z है, तो यहाँ पे क्या करना होता है? x की जगह पे z, y की जगह पे 0 पुट करना होता है और फिर सॉल्व करना होता है. एंड thus f of z can be obtained in terms of z
by putting x is equal to z and y is equal to 0 in f of z is equal to u of x comma y plus I into v of x comma y when f of z is analytic. When f of z is analytic, राइट। अब ये तो हुआ थ्योरेटिकल पार्ट, समझना क्या है हमको, देखो नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करता हूं मैं। एक थ्योरेटिकल पार्ट है, हम लोग जो देखेंगे मेन वो यहाँ पे है। एंड देयरफॉर अब आपको पता है एफ डैश ऑफ जेड का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज एफ डैश ऑफ जेड। जो चार फॉर्मूला मैंने आपको दिया था, दैट इज नथिंग बट यू एक्स प्लस आई इंटू वी एक्स। बट अगर आपके पास सिर्फ u दिया है रियल पार्ट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी चेंज करेंगे बाय सी आर इक्वेशन। तो ये बनेगा i इंटू यू वाई, दिस इज बाय सी आर इक्वेशन। और सी आर इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज आपका फंक्शन एनालिटिक है। और लास्ट टाइम ही बताया था कि इफ योर फंक्शन इज एनालिटिक देन इट मस्ट सेटिस्फाई द टू कंडीशंस। और फर्स्ट इज उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u and v with respect to x and y are continuous, and second one is it must satisfy CR equations. So CR equation से हम लोग ये लिख सकते हैं। मोर ओवर आपके पास उस थ्योरम के बाद चार फॉर्मूला थे, उसमें से एक फॉर्मूला ये भी है, राइट। सो अब क्या करते हैं, लेट ux is equal to phi 1 of xy and uy is equal to phi 2 of xy, एंड देयरफॉर आपका जो फंक्शन है एफ डैश ऑफ जेड वो क्या बन जाएगा। अब ux की जगह पे phi 1 लिखेंगे, phi 1 ऑफ xy माइनस आई इंटू phi 2 ऑफ xy। कुछ भी नहीं किया है, बस ये जो ux है उसकी जगह पे phi 1 लिखा है, uy की जगह पे phi 2 लिखा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, विल पुट x इज इक्वल टू z, y इज इक्वल टू 0। पुट x इज इक्वल टू z, y is equal to 0। तो आपको f dash of z क्या मिलेगा, that will be nothing but phi 1 of z comma 0 minus I into phi 2 of z comma 0, बराबर है। अब यहाँ पे इतना मिलने के बाद में आपको f of z चाहिए, आपको एक्चुअल फंक्शन चाहिए। अगर ये पार्ट हम लोग कब कर रहे हैं, when u is given ना, when real part is given। I can write over here, एक मिनट दिख रहा है आपको, I can write that when the real part is given, तब हम लोग ऐसा करेंगे, part is given। ये थियरी है, क्वेश्चन आपको अलग है, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, पहले थियोरेटिकल पार्ट देख रहे हैं हम लोग। when real part is given that is u दिया है तो आप इस तरह से करेंगे। अब आपको तो एक्चुअल फंक्शन f ऑफ z चाहिए, तो और आपके पास f डैश ऑफ z है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग विथ बोथ साइड्स। और इंटीग्रेशन आपको पता है कि डेरिवेटिव का ऑपोजिट है, तो ये f डैश ऑफ z हट जाएगा, आपको बचेगा आपके पास f ऑफ z इक्वल टू, यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन phi 1 ऑफ z कॉमा 0 इंटू डी जेड माइनस आई कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर, एंड देन phi 2 ऑफ z कॉमा 0 एंड प्लस सी इसलिए क्योंकि लिमिट नहीं दी है इनके, ठीक है। ये हुआ जब आपका रियल पार्ट गिवन है। अब आते हैं सेकंड पे, when imaginary part is given। इमेजिनरी मतलब यही है आपका क्या है, इतना जो पार्ट है ये आपका मिलने थॉमसन मेथड का बेसिक है कि इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर रियल पार्ट दिया है तो ये मेथड है, इमेजिनरी पार्ट दिया है तो नेक्स्ट मेथड, व्हेन इमेजिनरी पार्ट इज गिवन, राइट। सबसे पहले तो f डैश ऑफ z आपका है ux प्लस आई इंटू वी एक्स, लेकिन आपको पता है कि सिर्फ v दिया है, v गिवन, तो आप यहाँ पे ux से तो काम नहीं चला सकते, आप CR इक्वेशन यूज कर लो। ux इज इक्वल टू vy था, तो ये आपका होगा vy प्लस आई इंटू वी एक्स बाय CR इक्वेशंस। आया सबको समझ में। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लेट ये जो vy है ना, उसके लिए मैं उसको बोल देता हूँ vy इज नथिंग बट psi 1। अब फाई लिख चुके हम लोग पहले ऊपर में, तो अब मैं क्या करता हूँ, psi न्यू फंक्शन डिनोट करता हूँ psi 1 ऑफ xy, और जो vx है ना
उसको लिखते हैं psi2 ऑफ xy। ठीक है, अब ये करने पर आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, f डैश ऑफ z इज इक्वल टू psi1, py की जगह पे है psi1 ऑफ xy प्लस I इंटू psi2 ऑफ xy। राइट, अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी पुट x इज इक्वल टू z and y is equal to 0, so that your function f dash of z becomes psi1 of z comma 0 plus I into psi2 of z comma 0। बराबर है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं दोबारा से, इंटीग्रेटिंग तो क्या हो जाएगा, f of z इक्वल टू इंटीग्रेशन psi1 z comma 0 into dz plus I इंटीग्रेशन psi2 of z comma 0 plus c। तो इस वे से आपको आपका फंक्शन मिल जाएगा f of z if v is given। आया समझ में मेथड, सिर्फ मेथड समझ लो, एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा अभी, ये सिर्फ मेथड है, दिस इज कॉल्ड एज मिलने थॉमसन मेथड। इस पे थ्योरी पे क्वेश्चन नहीं आता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये आपको नहीं पूछा जाएगा कि ये कैसे है या फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आया सबको समझ में? एग्जांपल देखिए अभी फिर मिलने थॉमसन मेथड पे। एग्जांपल नंबर 1, example 1, construct an analytic function whose real part is e raised to x cos y into cos of y, ये फंक्शन दिया है। रियल पार्ट जो है, ठीक है, अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? ये रियल पार्ट है उस फंक्शन का, किसका, f ऑफ z का। आपको टोटल फंक्शन फाइंड आउट करना है, यानी पहले आपको इससे v फाइंड आउट करना होगा, ये u है, और फिर दोनों का एडिशन करके f ऑफ z बनाना पड़ेगा। राइट, हमको पता है कि f ऑफ z इज नथिंग बट u प्लस iv, वेर u इज रियल पार्ट और ये है इमेजिनरी पार्ट, और आपको दिया है रियल पार्ट। राइट, हियर u is given, u is nothing but e raised to x cos y, बराबर है क्या? अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ z, f डैश ऑफ z इज नथिंग बट ux प्लस ivx। राइट, सबसे पहले तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लेते हैं। रियल पार्ट दिया है, स्टेप्स आपको बता दूं क्या, स्टेप्स क्या क्या होंगे? इससे पहले स्टेप्स बताने चाहिए थे। चलो, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, यहां तक क्वेश्चन लिख दिया हमने। अब मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं, यहाँ पे मैं उसको बॉक्स कर देता हूँ। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग इफ u इज गिवन। स्टेप नंबर 1 होगी दैट if u is given, then from u first find ux and uy। ठीक है, सेकेंड स्टेप विल बी put phi1 as ux, phi2 as uy, यानी जो फर्स्ट फाइंड आउट किया है पार्शियल डेरिवेटिव उसको बोल दो आप phi1 और दूसरे को बोल दो phi2। ठीक है,
ऑलराइट, अब क्या करते हैं, देखो थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर थर्ड, put x is equal to z, y is equal to 0. X is equal to z, y is equal to 0 and find, ये जो phi 1 of xy था उसमें phi 1 of z, 0 बनेगा जब x की जगह पे z पुट करेंगे, and phi 2 of z, 0, right? Then fourth one, तो आपका f dash of z बनेगा, then f dash of z will be phi 1 z, 0 प्लस नहीं माइनस i इंटू फाई 2 ऑफ z, 0। देखिए यहाँ पे भी बताया है मैंने ये वाला पार्ट, राइट? अब क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। देन फिफ्थ वन, इंटीग्रेटिंग, तो आपका f ऑफ z इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ z into dz, that will be nothing but integration phi 1 z, 0 minus I into phi 2 z, 0 plus c। आया समझ में? यहाँ पे भी आप प्लस सी डाल सकते हो, ठीक है? सो ये स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे। v के लिए भी वैसे ही होगा, v के लिए जब v का एग्जांपल करेंगे तब बता देता हूँ स्टेप्स। ये स्टेप्स आप याद रखेंगे तो भी चलेगा। सो अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है u is e raised to x cos y, तो फर्स्ट स्टेप है आपका फाइंड ux एंड uy, राइट? सो कंटिन्यूइंग ऑन नेक्स्ट पेज, इसको सामने ही रखता हूँ ताकि आपको स्टेप समझ में आए। सो वी हैव, यहाँ से सॉल्यूशन दोबारा स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन, here u is given, u is e raised to x cos y, this is what the question has provided, that is real part, right? अब आपको स्टेप नंबर 1 क्या है, from u find ux and uy। so partial derivative of u with respect to x क्या होगा, cos y तो कांस्टेंट है, e raised to x का डेरिवेटिव होगा e raised to x cos y as it is, ठीक है? uy partial derivative of u with respect to y क्या होगा, e raised to x as it is, cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन, राइट? सो माइनस e raised to x sin y बराबर है, इज इट राइट? सेकंड क्या बोला है उन्होंने, पुट ux इज इक्वल टू phi 1, सो लेट phi 1 of xy is nothing but ux, और ux आपको मिला है e raised to x cos y, am I right? and phi 2 of xy is nothing but uy, that is nothing but minus e raised to x sin y। यहां तक क्लियर हुआ क्या? ये हमने किया है स्टेप नंबर 2 के लिए। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 के लिए। स्टेप नंबर 3 के लिए क्या बोल रहा है वो, कि पुट x इज इक्वल टू z, y इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड phi 1 of z, 0 एंड phi 2 of z, 0। सो क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू z, पुट x is equal to z, y is equal to 0, तो आपको phi 1 of z, 0 क्या मिलेगा, यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम लोग। सो phi 1 z, 0 यानी x की जगह पे आपको z पुट करना है, यहाँ पे e raised to x था, वहां पे आएगा e raised to z, cos y की जगह पे आएगा cos 0। व्हाट इज cos 0? 1, so that will be nothing but e raised to z। आया समझ में? सेकेंड, अब आते हैं सेकंड के लिए, phi 2 of z, 0 is nothing but माइनस e raised to x था, लेकिन x की जगह पे हम z पुट कर रहे हैं, और साइन 0, लेकिन साइन 0 होता है कितना, 0। सो आपका आंसर मिलेगा phi 2 का 0। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अब आते हैं स्टेप नंबर 4 के लिए। मैं चाहिए तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 कर लेता हूँ, दिस इज माई स्टेप नंबर 1, देन दिस इज माई सेकेंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे, स्टेप वाइज करेंगे तो याद रहेगा। नाउ f dash of z is equal to phi 1 z, 0 minus I into phi 2 of z, 0, that will be nothing but phi 1 z, 0 is e raised to z minus I into phi 2 of z, 0 is 0, बराबर है। एंड देयरफॉर आपको f dash of z कितना मिल रहा है, that is nothing but e raised to z।
लेकिन आपको तो क्या चाहिए, एफ ऑफ जेड चाहिए। अभी नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 क्या है आपकी, स्टेप नंबर 5 सेज दैट इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन। तो इंटीग्रेट करेंगे तो आपको एफ ऑफ जेड मिलेगा, दैट विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन ई रेज टू जेड प्लस सी, बराबर है क्या। बट व्हाट इज इंटीग्रेशन ई रेज टू जेड इफ योर फंक्शन इज एनालिटिक। अगर आपका फंक्शन, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन, यानी आपका फंक्शन एनालिटिक है, इसका रियल पार्ट दिया है आपको, तो आपका फंक्शन एनालिटिक है। इफ योर फंक्शन एनालिटिक देन इट कैन बी इंटीग्रेटेड एज वेल एज डिफरेंशिएटेड इन यूजुअल मैनर। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू जेड, e raised to z, and therefore your answer will be e raised to z plus c। आया समझ में सबको बॉयज? सर ओके, इस तरह से आप जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2। सर वो पेज दिखाओ ना। पेज क्या करना है, बताना है क्या, यही है ना क्वेश्चन, यहाँ पे है। हाँ वही क्वेश्चन ही नीचे वाला। ये वाला ना, कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन whose real part is e raised to x। हाँ, लास्ट का आंसर दिखाओ ना एक बार। लास्ट का आंसर है e raised to z plus c। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले अभी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। We are discussing when real part is given. Second question, example number 2, find the imaginary part of the analytic function। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज है क्वेश्चन, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट of the analytic function whose real part is e raised to 2x x cos 2y minus y sin 2y। सॉल्यूशन क्या बोला है इन्होंने कि आपको इस फंक्शन का एक एनालिटिक फंक्शन है, उसका रियल पार्ट दिया है और आपको बोला है कि इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करो, राइट। पहले तो आप फंक्शन ही फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बाद आप सेपरेट करेंगे और फिर उसमें से रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रियल पार्ट इज गिवन, u इज गिवन, u दिया है आपको e raised to 2x x cos 2y minus y sin 2y, राइट। अब सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या होती है, फर्स्ट फाइंड ux एंड uy। सो ux इज, यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन में ये फंक्शन में x नहीं है तो ये 0 आएगा। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, x का डेरिवेटिव 1 cos 2y कांस्टेंट, सो ये आएगा 1 इंटू cos 2y minus 0 plus first function as it is, second function as it is, derivative of first function. What is derivative of e raised to 2x, 2 e raised to 2x into first function, second function as it is, cos 2y minus y sin 2y, right। simplify करते हैं इसको, ux is e raised to 2x cos of 2y plus 2 e raised to 2x x cos 2y minus y sin 2y। आया समझ में? आप चाहिए तो e raised to 2x को कॉमन ले सकते हैं इसमें से।
दिस विल बी e raised to 2x इनसाइड द ब्रैकेट, ये ब्रैकेट पहले लिख देता हूँ, एक मिनट। हाँ ये 2, यहाँ से मैं सिर्फ e raised to 2x कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर होगा 2x cos of 2y माइनस y sin 2y प्लस cos 2y। थोड़ा आगे पीछे लिखा है, आप पहले ये लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दिस इज योर ux। अब आपको uy भी फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट स्टेप, uy इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे आप u भी रूल अप्लाई कर सकते हैं क्या, ये फंक्शन ऑफ x है और आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, यानी ये एज इट इज रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे कि y के टर्म्स कैसे हैं और उस हिसाब से करेंगे, बराबर। सो वी हैव e raised to 2x कांस्टेंट एज इट इज, यहाँ पे x कांस्टेंट है, cos 2y का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 2y, x एज इट इज रखता हो माइनस साइन 2y into derivative of 2y that will be 2, बराबर। सो ये बनेगा माइनस 2x साइन 2y। फिर आते हैं यहाँ पे u into v रूल अप्लाई होगा यहाँ पे आपका, सो दिस विल बी माइनस साइन एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ साइन 2y is cos of 2y into derivative of 2y that is 2 plus sin 2y as it is, derivative of 1 y is 1, so इतना बचेगा, राइट। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करो इसको, दिस विल बी e raised to 2x as it is minus 2x sin 2y माइनस, इसको पहले लिख देता हूँ sin 2y minus 2y cos of 2y, this is uy, right। so ux भी मिल गया, uy भी मिल गया, ये अभी आपकी स्टेप नंबर 1 हुई सिर्फ। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 के लिए। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, लेट phi1 of xy is equal to ux, बट ux क्या है आपका, ये है, दिस इज नथिंग बट e raised to 2x, मुझे लगता है नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहिए, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं मैं, बिकॉज दोबारा से हमको इसमें x की वैल्यू z, y की वैल्यू 0 पुट करना है, सो आई विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट पेज। So step number 2, ux phi1 of xy is nothing but ux, that is nothing but e raised to 2x cos 2y minus 2y sin 2y plus cos of 2y, ठीक है। एंड सेकेंड है phi2 of xy is equal to uy, that is nothing but e raised to 2x minus 2x sin 2y minus sin 2y minus 2y cos of 2y, राइट। नेक्स्ट, अब ये हुआ, नेक्स्ट स्टेप होती है बाय मिलने थॉमसन मेथड, यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू z, y इज इक्वल टू 0 बाय मिलने थॉमसन मेथड। पुट x इज इक्वल टू z, y इज इक्वल टू 0, सो आपका जो f डैश ऑफ z है, अब वही डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, आप चाहिए तो एक स्टेप और बढ़ा दो, f डैश ऑफ z आपका बनेगा phi1 of z, 0 minus I into phi2 of z, 0, बट आपका phi1 of z, 0 आपने फाइंड आउट नहीं किया है, आपने बस लिखा है। अब आप क्या करेंगे, वो डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे। सो देखो phi1 of z, 0, x की जगह पे z पुट करो, y की जगह पे 0 पुट करो, क्या बनेगा आपका, दिस विल बी e raised to 2z, बिकॉज x की जगह पे z पुट किया, ब्रैकेट के अंदर 2x, x क्या है आपका z, cos of 0 minus 2 into 0 sin of 0, y की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं, प्लस cos of 0,
ये हुआ आपका phi 1 माइनस साइन आई साइन phi 2 ऑफ z कॉमा 0। अब यहाँ पे थोड़ा स्क्वायर ब्रैकेट दे देता हूँ, e रेस टू 2z माइनस 2z साइन 0 माइनस साइन 0 माइनस 2 into z into 0 into cos of 0, right? This will be nothing but e raised to 2z as it is. 2z cos 0 is 1. एक मिनट। हाँ, ऑलराइट, आवाज आ रही है मेरी बॉयज? आजाद आ रही ना आवाज? अब e raised to z cos 0 1 है हमारा, sin 0 0 है, तो ये टर्म आपकी पूरी वैनिश हो रही है, ये टर्म आपका 1 हो रहा है और ये टर्म आपका 1 हो रहा है। ये टर्म पूरी वैनिश हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे 0 आएगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो बचेगा कितना आपके पास e raised to 2z। बॉयज आजाद हो ना क्लास में? 2z cos 0 1 है, ये बाकी के टर्म 0 हो जाएंगे, माइनस आई देन e raised to 2z अगेन, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ये 0 हो रहा है, ये 0 है, सब 0 है, तो आपके पास f डैश ऑफ z कितना बचा है? इट इज नथिंग बट 2z e raised to 2z। तो ये है आपका फंक्शन। अगर क्वेश्चन, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है कहीं? 2 into y प्लस सी नहीं डाला है, प्लस सी अभी तक डाला नहीं है, यहाँ तक राइट है। 2z प्लस 1 आना चाहिए था यहाँ पे, प्लस 1, हाँ ये मिसिंग किया ना हमने, यहाँ पे मिस कर दिया हमने। 2z प्लस 1 है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। समझ में आया? ये 0 हो रहा है, ये 1 हो रहा है, 2z इंटू 1, ये 0 हो रहा है लेकिन ये 1 हो रहा है, तो आपको 2z प्लस 1 लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे I'll write down, ये तो 0 हो रही है लेकिन यहाँ पे है 2z प्लस 1 इंटू e रेस टू 2z, राइट? यहाँ तक क्लियर है सबको? लेकिन ये तो हमारा f डैश ऑफ z है, वी वांट f ऑफ z, सो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव f of z is equal to integration e raised to 2z plus 1 into dz, राइट? अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा। अब दोनों भी z में है तो आपको बाय पार्ट्स रूल यूज करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज हमको f of z चाहिए, सो बाय पार्ट्स रूल से करते हैं। क्या होगा? ये फर्स्ट फंक्शन आप वो लो जो जल्दी वैनिश हो पाए। जल्दी वैनिश कौन सा होगा? 2z प्लस 1, बिकॉज इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 2, सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और लीटे रूल भी आपको पता होगा, LIATE, लीटे रूल से भी आप बोल सकते हो, इसको सर्च कर लेना नेट पे, या फिर आप थोड़ा देखो, आपका जो 12th का जो स्टैंडर्ड था उसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में ऐसा इंटीग्रेशन में ये पार्ट था, लॉगरिथमिक एंड लाइक दैट। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट फंक्शन, integration of second function, integration e raised to 2z into dz minus integration of derivative of first function, that is d by dz of 2z plus 1 into integration of e raised to 2z into dz, right? बराबर है क्या? अब आगे क्या होगा? इतना ही करना होगा क्या हमको? देखते हैं। So this will be nothing but 2z plus 1 as it is, integration of e raised to 2z is e raised to 2z divided by derivative of 2z, that is 2, बराबर है इंटीग्रेशन का रूल, माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ दिस 2z का डेरिवेटिव होगा 2 और इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2z इज e raised to 2z डिवाइड बाय 2 इनटू dz। यहाँ पे dz और एक होगा, ठीक है। ये 2 और ये 2 गेट कैंसिल, लेकिन e raised to 2z का और एक बार आपको इंटीग्रेशन करना होगा। सो दिस इज 2z प्लस 1 e raised to 2z डिवाइड बाय 2 माइनस e raised to 2z का इंटीग्रेशन होगा e raised to 2z डिवाइड बाय 2 प्लस c आप ऐड करेंगे, प्लस c, ठीक है। सो f of z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f of z इज e raised to 2z। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको सेपरेट कर लो बिकॉज इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा e raised to 2z, 2z e raised to 2z divided by 2. I have just multiplied this e raised to 2z inside the bracket plus 1 into this e raised to 2z divided by 2 minus e raised to 2z divided by 2 plus c as it is, बराबर। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं। सो आपके पास f of z कितना बचेगा, दिस विल बी z e raised to 2z plus c। इतना ही आपका जो है फंक्शन है f of z। बट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, व्हाई, बिकॉज आपको उन्होंने फंक्शन नहीं फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि रियल पार्ट दिया है, उन्होंने बोला है इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करो। अगर सिर्फ फंक्शन पूछा होता कि फाइंड एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड तो आप यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अगर आपको बोला है कि रियल या इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करो तो अब आपको क्या करना है, जेड की जगह पे एक्स प्लस आई वाई पुट करना है और सेपरेट करना है। सो क्या होगा, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आई वाई और e raised to 2z की वैल्यू होती है e raised to 2 into x plus i y। c को थोड़ी देर के लिए साइड को रखते हैं बिकॉज वो अभी हमको सिर्फ सेपरेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट को। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, दिस विल बी नथिंग बट x plus i y एज इट इज। इसको मैं लिखता हूँ e raised to 2x and e raised to i into 2y। अब आपको पता है e raised to i थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट e raised to 2x एज इट इज लिख दो, देन x plus iy एज इट इज, और ये जो है इसको लिखेंगे cos of 2y plus i into sin of 2y, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा और फिर सेपरेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किसमें आया है, वो टर्म्स को आप कलेक्ट करेंगे, दैट विल बी योर पार्ट v, ठीक है। सिंप्लीफाई करता हूँ e raised to 2x एज इट इज, x से पहले मल्टीप्लाई कर लो, x cos 2y plus i x sin 2y, ठीक है। फिर i से i y से मल्टीप्लाई कर लो, i y cos 2y plus i square y sin 2y, राइट। अब i स्क्वायर तो -1 है तो ये टर्म और ये टर्म जो है वो रियल बन जाएगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, और ये दो टर्म्स जो है वो इमेजिनरी है। आपको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो आप सेपरेट करते और स्टेप करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम दिस यू कैन कंक्लूड दैट therefore v, that is imaginary part, is equal to क्या होगा, e raised to 2x तो हर एक टर्म को कॉमन था मल्टीप्लाई, सो वो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, और फिर यहाँ पे i छोड़ के जो पार्ट है दैट इज x sin 2y प्लस यहाँ पे भी i के बाद जो पार्ट है y cos 2y, ये है आपका इमेजिनरी पार्ट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इफ u और v इज गिवन। आया सबको समझ में ये पार्ट? बॉयज थोड़ा लेंथी लगता है लेकिन एक बार अगर आपका हो गया, समझ में आ गया तो डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। एक होमवर्क देता हूँ एंड देन विल स्टॉप। यहाँ पे ही दे देता हूँ होमवर्क। होमवर्क है, find the analytic function, find the analytic function f of z where u is
एनालिटिक फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है। u दिया है x/2 log ऑफ x² प्लस y² माइनस y tan इनवर्स y/x प्लस sin x cos hyperbolic y, cos hyperbolic y. This will be your homework question.